Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we now start the from again where we have disconnected, and this time, as you can see, we need to use the same class diagram with some extended information, and that information is primarily public information, and public information is also can be accessed through an interface. तो हम इसको प्राइमरली इंटरफेस भी कहते हैं। तो वो पर इंटरफेस क्या होगा, पर्सन डॉट सेट आईडी, ओके, क्लास क्लास का नाम और उसके बाद उसके साथ डॉट सेट आईडी, और इस तरीके से हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे। जिस तरह पर्सन डॉट आइडेंटिटी था और हमने फिर स्टूडेंट को लिंक किया तो स्टूडेंट डॉट आइडेंटिटी भी एक्सेस होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस नए जो हमें इस डायग्राम से सीखना है वो ये है कि द बॉक्स नो कंटेन्स 3 पार्ट्स, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप it says the name of the class, then it include the private members. Private members are primarily usually the data members with a negative sign, and then the public data functions, public member functions, and these functions usually contain a plus sign and also a bracket, and this bracket shows the variables, the parameters they need, and it also highlights the output of that. प्राइमरली अगर हम सी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में बात करें, अगर हम पाइथन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, दिस लॉन्ग हैज़ नो मीनिंग्स। सिमिलरली दिस लॉन्ग एंड इंटीजर एंड वॉइड हैव नो मीनिंग्स, okay. Similarly, when we go to the student class, we again see there are 3 parts, and in these 3 parts or 3 boxes we have the name of the class, the private member, data member, and similarly the public functions. Okay, how this class is implemented in coding? It is very to learn and very interesting to primarily see these things. So until now we have in the class person go from here to here. More things need to be added, and these two more things are the how we can set the identity and how we can get the print the identification. So first of all, we focus on this definition of the function, and this function name is set id. It's the same name which is given here on the left side. So as the practice of the programming is the self should be there as the first parameter, and the next parameter is the new id, because the new id now has to replace the previous. And only one line in this function definition, and function definition start with primarily the colon, okay. The colon is, this is the definition, the keyword, then the name of the function, and the requirements, and then the start, the body of the function, okay. Body of the function contain only one line. Now set self.id is equal to new id, okay. Remember this self is the person, so person.id now become the new id, ठीक है। सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो जिस ऑब्जेक्ट की भी हम बात कर रहे होंगे उसकी नई आइडेंटिफिकेशन सेट हो जाएगी। देन द नेक्स्ट इज द प्रिंटिंग, द प्रिंट दैट आईडी। The print ID is very easy. Whenever we this function did not take any parameter, and it only have one statement that return the self.id, return the self.id. So whenever we write this get ID, it will automatically print the identification of the instance, जो instance है data है उसकी identification जो है
So this way we can extend the student class as well. And in the student class you can see there are two definitions on the similar pattern, that the new GPA is assigned, then the GPA get printed. Okay. So this is the same thing. Okay, so students, if you have any question here at this point in time, यहाँ आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है? खामोशी है, कोई सवाल नहीं आ रहा अभी तक. Okay, so I ask question to the Nimra. जी निम्रा, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर। किसे समझ में आ रही है? यस सर। इब्रार कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार जी सर। जी बेटा बोले। जी सर, जो लास्ट हम स्लाइड कर रहे थे, लास्ट जो हमने सर प्रोग्राम बना रहे थे सर, इस प्रोग्राम में और लास्ट वन में तो सर कोई डिफरेंस नहीं है ना? तकरीबन मेथड तो सर हम वही कर रहे हैं। इब्रार का सवाल ये है कि ये प्रोग्राम और लास्ट प्रोग्राम जो है उसमें कोई फ़र्क है? हाँ बिल्कुल है, और उसी प्रोग्राम को हम एक्सटेंड कर देंगे और उसमें हर क्लास में कुछ न्यू जो कोड लाइंस हैं वो डाल देंगे, और उससे क्या होगा कि हम फिर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में तो सेम वही क्लास वो डेफिनेशंस ये जो अभी हम लिख के आ रहे थे, लेकिन यहाँ देखें हमने एक स्टूडेंट को इनिशियलाइज किया। अब स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी, स्टूडेंट का जीपीए है। अब जैसे हम ये एंटर करेंगे तो वो सीख जाएगा, जो कोड है उसको पता चल जाएगा और हम इसको फिर डिस्प्ले करवा सकेंगे। अब स्टूडेंट गेट आईडी में वो जस्ट आईडी को डिस्प्ले करेगा, स्टूडेंट गेट जीपीए को में सिर्फ स्टूडेंट का जीपीए दिखाएगा, यानी अलग अलग ना। और देखें ये चूंकि इनके आगे ब्रैकेट्स लगी हुई है, इसका मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन कॉल हो रहा है। Similarly, we can then go to the next set of experiment in which we can set a different ID to the same student, and similarly we can set a different GPA to the same student, and this way we can get a new information about the student. इसमें दो तीन कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि आप किस तरीके से जो आइडेंटिफिकेशन और जीपीए को गेट करेंगे, यानी उसको कैसे आप क्लास के अंदर से जो है वो आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। दूसरा कंसेप्ट ये है कि क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे चेंज करेंगे। ये दो मेजर कंसेप्ट हैं। इसके साथ साथ एक कंसेप्ट इसमें और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि देखें पर्सन के अंदर जो है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि पर्सन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जबकि स्टूडेंट क्लास जो है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के नाम से कोई चीज़ डिफाइन नहीं है। ओके, लेकिन जब हम स्टूडेंट को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, या यहाँ अगर आप देखें तो स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन हम एक्सेस कर रहे हैं। अगरचे स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है या स्टूडेंट की जो क्लास है, क्लास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो डिफाइंड नहीं है, आइडेंटिटी पेरेंट में डिफाइंड। तो तीन टोटल कंसेप्ट हैं इसमें। अगर मैं यहाँ लिख दूँ तीनों कंसेप्ट जो है, पहला कंसेप्ट क्या है इस यहाँ पे हमारे पास कि किस तरीके से हम जो है वो क्लास के अंदर जो है वो अपडेट करेंगे। गेट इन्फो
about an object. Second thing is to update that info inside the object. नंबर 3, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें तो, एक मिनट मैं इनको, नंबर 3 इज हाउ द इनहेरिटेंस वर्क। ओके, इनहेरिटेंस वर्क से मुराद क्या है, थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टूडेंट डॉट आईडी पे फोकस कीजिए आप। स्टूडेंट डॉट आईडी पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट क्लास है इसके अंदर जो है कहीं पे भी सेल्फ डॉट आईडी नहीं लिखा हुआ। स्टूडेंट क्लास के अंदर कहीं पे भी सेल्फ डॉट आईडी नहीं लिखा हुआ, या स्टूडेंट डॉट आईडी जिसको हम कहेंगे। जो सेल्फ डॉट आईडी है वो पर्सन क्लास में डिफाइन है। तो ये इनहेरिटेंस जो है ये लिंक कर रही है, एंड वी कैन रिप्लेस द पर्सन, जैसे पर्सन डॉट आईडी। So we replace this person with this student. That is the internals of the inheritance. Inheritance जो है वो कैसे चल रही है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है या कैसे ये चल रहा है, वो उससे हमें कोई तल्लुक नहीं है, उससे हमें कोई वास्ता भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इन कंसेप्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं राइट साइड में। जी इमरान, अब बताइए, आपकी समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक आप इसकी कोडिंग खुद नहीं करेंगे, जब तक आप इसको जो है वो खुद से एक दफा करके नहीं देखेंगे, तो ये चीजें आपके लिए समझना जो है ना कोड से इतना आसान नहीं होगा। कोड की तरफ चले जाते हैं और फिर हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो क्विकली जो है वो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। ओके, हम कोड पे आ गए हैं, और कोड पे आके जो है वो हम चाहते हैं, कुछ चीज़ें मैं डिलीट करना चाहूँगा। ओके, यहाँ पे हम एक नया फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं, डिफाइन गेट, बल्कि पहले सेट आईडी। ओके, सेट आईडी। Okay, this function takes self parameter and it takes new id parameter, and then the new value of self id is new id. Similarly, we define a new function get id, and it takes no parameter, return self dot id. That's it. अच्छा, हम इसको बिल्कुल सामने भी लिख सकते हैं। एक मिनट में सामने लिख देता हूँ, होपफुली इट विल वर्क। ओके, क्योंकि सिंगल लाइन में हमारे पास यहाँ स्पेस इतनी नहीं है। ओके, सो आई डिफाइन द सेम फंक्शन, सो आई कॉपी पेस्ट कैन वर्क हियर, and now I have new GPA, new GPA. Okay, and similarly return self.gpa. Okay, code is the same. No, I have to execute it if there is no error. Okay, there is no error, so I can now experiment here. Student 1 is a student, and I have to provide the identity and the GPA of the student. So 1, 2, 3, 4.
and GPA is, let's say, 3.2, and now I want it to student one dot get ID. Okay, get ID. It should print the 1 2 3 4. Okay, so I run it. Okay, get ID does not print anything. Let me print it. Oh, it printed the 3.2. Actually, the code which is written in the slides is taken from another Python primary. The view of the Python is different, so it requires a print statement. So it is not a big deal. So similarly, I can get the GPA, student one dot get the GPA. Okay, so I have not written the get GPA. So set GPA and get GPA. Set GPA and get GPA. Okay, so I have to execute again. Okay, so it is giving an error. Definition of get GPA. Bound method student get GPA student object. Let me print it in a function form because it requires a function attribute. Okay, so it is now started printing 1 2 3 4 and 3.2. So remember, I have not given everything here. Only this thing is referred from student one. Okay, एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होगा.
ओके, थैंक यू वेरी मच। असल में घर में कोई है नहीं, तो जो पानी को प्राइमरली पानी पीने का पानी वाले आ गए थे लोग। ओके, थैंक यू बेटा, शुक्रिया आपने इंतज़ार किया। नो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। ओके, आई एम टेलिंग यू दैट मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि दिस प्रोग्राम इज़ रिटन इन एन अदर प्राइमरली एप्लीकेशन, and we are primarily implementing it on the online DBG. So there's a bit of difference between printing the function only, and the rest of the things are the same. Okay. Now I want to make a change here. So I make a change student one dot set ID. So this will be a new ID, 5, 6, 7, 8. And then I again print the same line. Okay, so I run here. So as you can see, the student ID is now changed. Initially it was 1 2 3 4, and when I printed the second line, it now becomes the 5 6 7 8. Now I can do another thing. I can make a change primarily in the GPA as well. Student dot GPA dot set GPA, and I want to set the GPA for the student one, and the new GPA is 3.4. Let's say 3.5 for example, and now I again go and print this. Okay, so now the GPA should also change, and I will see another line here, 5 6 7 8 3.5. Okay, so I need to go upward. So initially the student identification and GPA was 3.2. Then I changed the student identification. The GPA will remain, and then I changed the GPA as well. Okay. So this way we have gone through primarily the code which is written in this slide. And I am sure that you know can easily understand कि कैसे हम ये चीज़ें कर पाएंगे, कि क्लास जो है यानी एक डायग्राम की मदद से हमने कंसेप्ट सीखा कि देयर शुड बी 2 classes, and one class should have the parameter identity, and another class should have a parameter GPA, and there is also public members in which we can get the identification, and we can even change the identification. Similarly, in the student module we can get the GPA and we can set the GPA. Additionally, जो चीज़ मैं फाइनली यहाँ पे आपको इस कंडीशन में बताना चाहूँगा वो ये है कि if we talk about the person and the public kind of things, we can have person dot set ID, person dot get ID. लेकिन जब हम स्टूडेंट की इनहेरिटेंस के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के अपने मेंबर्स की बात करते हैं. सो स्टूडेंट डॉट सेट GPA, स्टूडेंट डॉट गेट GPA. तो ये तो वो है जो स्टूडेंट की डेफिनेशन, क्लास की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है. बट व्हाट दिस इनहेरिटेंस ब्रिंग्स टू अस इज, लिखना चाहूंगा, द इनहेरिटेंस ब्रिंग टू अस इज स्टूडेंट डॉट set ID and student dot get ID. So these two functions are not defined here. Okay, these two functions
set ID and get ID, they are not present here. We cannot see them, but these functions came as inherited from the parent class. तो इस तरीके से हमें कोडिंग भी नहीं करनी पड़ी और हमारे मसले भी हल होते चले गए, यानी जो चीज़ें हैं वो हमारी जो है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होती चली गई. So this end our learning session here up to this slide, and I request you to go to the other slides by yourself. The slides which just highlighted जो अभी मैं आपको बता रहा था, and then another class, employee class, which have two parameters and the methods which are primarily used to set and get the information, and this is the code for the employee and some exercises written here. So it is very easy. Now you can easily go through it and can easily primarily a step ahead from the previous. So any question which are related to 2 days session, आज की जो सेशन है इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं. जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है आपके जहन में? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन आई टेक यू टू द LMS. मैं ये चाहूँगा कि LMS जो है उस पे आई हैव एडिड क्विजेस एंड फर्स्ट क्विज एंड असाइनमेंट. Okay, I have added assignment 1 and quiz 1. So I take you to those assignment and quizzes. Okay, in assignment 1, you have to explain the following UML diagram in your own words. जो अभी हमने सीखा है. So you have to write it in your own words. Similarly, this is the topic when we read in our next week. जब हम ये पढ़ लेंगे sequence diagram, then you have to write something about this sequence diagram as well. So these timelines are tentative. These are not the hard timeline at right this point. Okay. जब हम ये topic पढ़ लेंगे, then you can submit your assignment in a group of 2 to 3 students. So one student should be submitting, and 2 CMS IDs and the student name should appear here. Similarly, the quiz one is you have to make a simple UML class diagram which shows the polygon and triangle. और ये क्लास कोड लिखा हुआ है, ये कोड की मदद से आपने डायग्राम बनानी है. ठीक है. सो कोड इज रिटन. ये कोड हम पहले किसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो कोड इज गिवन एंड यू हैव टू मेक ए UML क्लास डायग्राम. एक क्लास डायग्राम बनानी है आपने जो कि इस तरह की होगी जैसे ये ऊपर ये क्लास डायग्राम बनी है. And similarly, you are working in a group of 2 to 3 students and submit, one student will submit, and the name should be 2 names and or 3 names and 2 to 3 CMS IDs. Okay. When you are going to submit, you have to submit in Microsoft Word format. Okay. So you go to the assignment. Let me take to you to the student view. So okay, I can change from here. Switch role to a student.
and in student I can go to the, let's say I go to the quiz and I want to submit the quiz, add submission, and then I just जो मैंने लिखा होगा I just यहाँ आप मैं चूज करूँगा फाइल को और उसको अपलोड कर दूंगा, और अपलोड करने के बाद I have to save, and then there will be a final message कि you need to confirm that you primarily submitting this assignment. जब आप असाइनमेंट को सबमिट कर लेंगे तो then you can see your submission as well. तो ये Excuse me, sir. आपने पहले सेमेस्टर में किया था। जी बेटा, आपके सवालात। सर असाइनमेंट जो आपने दिया है उसकी लास्ट डेट 10 दिसंबर है, लेकिन हमारी अब जो क्लास होगी वो 11 दिसंबर को होगी। कोई इसमें डेडलाइन इज नॉट हार्ड डेडलाइन। ये डेडलाइन जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे असाइनमेंट का, उस वक्त आप उस टॉपिक को जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ना, तो उस वक्त आप आसानी से कर लेंगे। अभी आप नहीं कर सकेंगे। देयर इज नो, ये डेडलाइन हार्ड डेडलाइन नहीं है, इट इज रिलैक्स्ड डेडलाइन ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट भी आप किसी भी टाइम में जमा करवा सकते हैं। ओके, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि डीन साहब ने मुझे कहा है कि देयर विल बी वन नॉन क्रेडिट मैथमेटिकल कोर्स फॉर यू गाइस। तो मैं सीआर से पूछ लूँगा कि व्हाट इज़ द सूटेबल टाइम, तो उसमें फिर हमें एक नॉन क्रेडिट, एक मैथमेटिक्स का 1 क्रेडिट का जो कोर्स है वो हम ऑफर करेंगे आपके लिए, ताकि जो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फाउंडेशंस हैं उनको हम देखा जा सके। और वो कोर्स भी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम या इश्यूज आ रही हैं, तो वो आपको उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक सूटेबल टाइम हो ताकि सब लोग उसको अटेंड कर सकें। तो इसके साथ ही आज जो टॉपिक है या सर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी अब्रार। सर ये असाइनमेंट जो आपने दी है सर, ये ग्रुप की सूरत में सर सबमिट करानी दोनों है क्विज और कुछ असाइनमेंट स्टूडेंट्स? दोनों ग्रुप की सूरत में करने हैं। अच्छा सर, ठीक है। और एक स्टूडेंट जमा करवाएगा, नाम दोनों के होंगे, स्टूडेंट एक जमा करवाएगा, ठीक है। 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं इवन, लेकिन नॉट मोर देन 3। ओके, ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।